today we are starting the new chapter surface chemistry. सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर की अगर मैं बात करूं, बेसिकली इस चैप्टर में वी आर डीलिंग विद द फिनोमिनन विच आर रिलेटेड विद द सरफेस, जस्ट लाइक रस्टिंग. सो surface chemistry involves the phenomenon which are related with the surfaces of any substances. If we consider this chapter, there are three main important components. In three topics we can discuss this chapter. Number first one is adsorption, number second catalysis, and number third colloids. We will be discussing these three one by one. First of all, if we consider one very important concept, that is adsorption. What adsorption mean is, adsorption कहते किसको हैं? Just see the accumulation of molecular species at the surface rather than in the bulk of a solid or liquid is known as adsorption. उसको कहेंगे adsorption. मतलब कोई भी पार्टिकल आए और किसी भी पार्टिकल के सरफेस के ऊपर में आकर के एक्यूमुलेट हो जाए तो उस पर्टिकुलर को वी विल से एडजॉर्प्शन. अब अगर एडजॉर्प्शन की मैं बात करूं, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल दे रहा हूं. इफ वी राइट समथिंग ऑन आवर ब्लैक बोर्ड, ठीक है, तो ब्लैक बोर्ड का जो चॉक है वो चॉक एक कंपोनेंट हो गया एंड बोर्ड इज गिविंग इट्स सरफेस. तो दो कंपोनेंट आए, एक सरफेस पे आ रहा है और दूसरा सरफेस दे रहा है. तो इफ वी कंसीडर द एडजॉर्प्शन, इट इज हैविंग टू कंपोनेंट, वन इज एडजॉर्बेट एंड सेकंड इज एडजॉर्बेंट. एडजॉर्बेट इज नथिंग, just point number 2, the substance which is being adsorbed on the surface of another substance is called adsorbate, and the component, the substance which is in bulk on the surface of which adsorption is taking place is called adsorbent. मतलब जो component अपना surface देता है that will be called adsorbent, and the component which is adsorbed, which is accumulating over the surface of another one will be called adsorbate. जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया ब्लैक बोर्ड और चॉक का, तो यहाँ ब्लैक बोर्ड क्या हो जाएगा आपका एडजॉर्बेंट एंड द चॉक पार्टिकल्स विल बी दी एडजॉर्बेंट. इसी से रिलेटेड एक और टर्म है, दैट इज डिसॉर्प्शन. पॉइंट नंबर 4, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एन एडजॉर्ब सब्सटेंस, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एन एडजॉर्ब सब्सटेंस ओवर from the surface on which it is adsorbed is called desorption. जैसे adsorption का it is just opposite term. Adsorption is the accumulation of one component over the surface of another one, and if it is removing from the surface, the process will be called desorption. One another term which is similar to absorption. ठीक, adsorption and absorption looks similar, but these are not 100% same. They are different terms. Absorption is the phenomenon in which a substance is uniformly distributed all over the surface. Absorption में क्या होता है, कोई भी पार्टिकल बॉडी के अंदर तक जाता है और वहां एब्जॉर्ब हो जाता है. This is called absorption. लेकिन adsorption is one another term. जैसे मान लीजिए इसको समझाने के लिए absorption or adsorption, if we want to distinguish between these two terms, just I am having one example. Take a cup and in that put some blue colored ink. blue color का ink ले लीजिए और उसमें एक चौक को लीजिए और चौक का longitudinal वे में ले करके उसको उसके इंक में खड़ा कर दीजिए. Just after 2 minutes, जस्ट ऑब्जर्व द चॉक. ब्लू कलर की जो डाई पार्टिकल होगी वो चॉक के सरफेस के ऊपर ऊपर रहेगी, क्लियर. लेकिन जो लिक्विड कंपोनेंट होगा इंक का वो चॉक के अंदर तक चला जाएगा. लिक्विड कंपोनेंट का एब्जॉर्प्शन हुआ है, ABSORPTION एब्जॉर्प्शन हुआ है, जबकि इंक पार्टिकल्स का
एडजॉर्प्शन हुआ है। यहाँ इंक पार्टिकल एडजॉर्बेट है और chalk is giving its surface, that's why chalk is adsorbent. So from this example I think it should be clear. If we discuss about the type of adsorption and absorption, just differences are there. See point number 1, absorption and adsorption. It is the phenomenon in which substance is uniformly distributed throughout the bulk. ये absorption है. But the accumulation of molecular species at the surface rather than in the bulk of the solid or liquid is termed as adsorption. एब्जॉर्प्शन की बात करूं तो ये बल्क फिनोमेना है और एडजॉर्प्शन की बात करूं तो ये सरफेस फिनोमेना है. नंबर 3 पॉइंट, द कंसंट्रेशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द बल्क ऑफ द सॉलिड. क्या बोल रहा है कि एब्जॉर्प्शन में जो कंसंट्रेशन होता है यूनिफॉर्म होता है, जबकि एडजॉर्प्शन में द कंसंट्रेशन ऑफ एडजॉर्बेट इंक्रीजेज ओनली एट द सरफेस ऑफ द एडजॉर्बेंट. क्लियर? ये दोनों में पर्टिकुलर बेसिक डिफरेंसेस हैं. पॉइंट नंबर 7 की मैं बात करूं, दैट इज सॉर्प्शन. सॉर्प्शन इज नथिंग, ऐसी कोई प्रोसेस जिसमें एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन बोथ टेक साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड सॉर्प्शन. जो अभी मैं चॉक का एग्जांपल दिया हूं, इंक पार्टिकल के अंदर, इंक के अंदर में आपने चॉक को डिप किया है तो उसमें एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है, एडजॉर्प्शन भी हो रहा है, दोनों प्रोसेसेस हैं. सो वी कैन से सॉर्प्शन इज टेकिंग प्लेस. नंबर 8 पॉइंट, दैट इज एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन. अब एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन जब हम ये चैप्टर डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे, तो उसमें ये काफ़ी टाइम आएगा. मतलब जब भी कोई दो पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है, जैसे हम वी आर सेइंग कि एडजॉर्बेट आर गेटिंग एडजॉर्ब ओवर द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट, इट मीन्स सम इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज देयर, एंड व्हेनेवर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज देयर एनर्जी विल बी गेटिंग रिलीज्ड. क्लियर? तो एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन का मतलब क्या होगा? Adsorption generally occurs with the release of energy. When adsorption occurs, energy will be getting released. So, the enthalpy change for the adsorption of 1 mole of adsorbate on the surface of adsorbent is called enthalpy of adsorption. 1 mole adsorbate का जब adsorption होता है तो whatever amount of energy is released, that energy is called enthalpy of adsorption. This is all about the particular terms which are related with adsorption. But if we discuss the types of adsorption, there are two basic different types of adsorptions are there. Number 1, physical, and number 2, chemical adsorption. Physical adsorption is commonly called physisorption. Physical adsorption and chemical adsorption, the name itself is saying that my definition is this. Physical मीन्स एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट दोनों के बीच में जस्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है, नथिंग एल्स. नो केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन देम, दैट विल बी कॉल्ड फिजिकल एडजॉर्प्शन. एंड केमिकल एडजॉर्प्शन, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ वन केमिकल बॉन्ड बिटवीन एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट. जैसे मैं एक एग्जांपल बोलूं कि रस्ट का फॉर्मेशन हुआ. रस्ट कहाँ लगती है? आयरन के ऊपर, सरफेस पे. रस्टिंग इज ऑल्सो एन एडजॉर्प्शन. अब ये एडजॉर्प्शन हुआ है आयरन, ऑक्सीजन और वाटर, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बनता है. रस्ट फॉर्मेशन के लिए हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड इज द फार्मूला ऑफ रस्ट. मतलब नाइट्रोजन आकर के रस्ट नहीं बना सकता. मतलब देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड बिटवीन आयरन एंड ऑक्सीजन. तो ये जो एडजॉर्प्शन है, ये कौन से टाइप का एडजॉर्प्शन हुआ? दिस विल बी chemical adsorption, where the form of chemical bond is there. So, physical adsorption, commonly called as physisorption. If the adsorbate is held at the surface of adsorbent by a weak van der Waals force, the adsorption is called physical adsorption. Means adsorbate और adsorbent दोनों के बीच में only physical adsorption is there. कोई bond का formation ना हो, only van der Waals force of attraction is there, that will be called physical adsorption. But in chemical, if the force holding the adsorbate are strong as in the chemical bond, if there is a formation of chemical bond between adsorbate and adsorbent, the type of adsorption is called chemical adsorption or chemisorption. There are some differences between physical and chemical adsorption. See, number first.
फर्स्ट पॉइंट आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे होंगे, फर्स्ट 2 बार दिया है, तो एक बार आपको फिजिकल का है, दूसरी बार केमिकल का है। फिजिकल में इट इज नॉन स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है? कोई भी आए, किसी का भी एड्सॉर्प्शन हो जाए, दैट विल बी नॉन स्पेसिफिक। फिजिकल में कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता, तो कोई भी आ सकता है। ब्लैक बोर्ड के ऊपर में डस्ट पार्टिकल आ जाए, गैस के पार्टिकल आ जाए, चॉक पार्टिकल आ जाए, किसी का भी एड्सॉर्प्शन हो जाएगा, दैट विल बी फिजिकल। लेकिन केमिकल में बॉन्ड बनने के लिए 2 स्पेशल केमिकल्स का आना जरूरी है, तो दैट विल बी हाईली स्पेसिफिक। नंबर 2 पॉइंट, फिजिकल एड्सॉर्प्शन इज रिवर्सिबल। आप एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट दोनों को अलग अलग भी कर सकते हैं, लेकिन केमिकल में बॉन्ड बन जाएगा तो उन दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते। जब मैं फिजिकल और केमिकल की बात कर रहा हूँ तो आपके दिमाग में 2 एग्जाम्पल होने चाहिए। 1 example of backburn and chalk, that will be of physical, and 2 rust formation. Clear? Number 3, the amount of gas depends on the nature of gas. That is, easily liquefiable gases like ammonia, carbon dioxide gas adsorb to the greater extent to hydrogen and helium. Higher the critical temperature, more will be the extent of adsorption. ये क्या चीज़ बोल रहा है? फिजिकल के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज देयर। तो जिन गैसेस का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उनका एड्सॉर्प्शन इजीली हो जाता है। नंबर 3 केमिकल की ही अगर हम बात करें तो अमाउंट ऑफ गेट्स एड्सॉर्ब्ड इज नॉट रिलेटेड टू द क्रिटिकल टेम्परेचर। वहाँ बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कोई लेना देना नहीं है वहाँ। नंबर 4 पॉइंट, द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन सरफेस एरिया। दोनों ही टाइप के जो एड्सॉर्प्शन होते हैं उसमें सरफेस एरिया बढ़ाने से, एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ाने से एड्सॉर्प्शन के इंक्रीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नंबर 4, इट ऑल्सो इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन सरफेस एरिया। नंबर 5 पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, in physical adsorption there is weak van der Waals force of attraction between adsorbent and adsorbent, but in chemical there is a strong force of attraction similar to chemical bond. Clear हुआ? Number 6 point, it has low enthalpy of adsorption. मैं किसकी बात कर रहा हूँ? फिजिकल की। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो एनर्जी भी कम रिलीज होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, एनर्जी विल बी मोर रिलीज्ड। मतलब एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन किस में ज़्यादा होना चाहिए? फिजिकल और केमिकल। 100% chemical. Number 7 point, low temperature is favorable, but in chemical adsorption high temperature is favorable. अगर टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हो जाएगा, मतलब फिजिकल में हाई टेम्परेचर इज अवॉइडेबल, हाई टेम्परेचर होना ही नहीं चाहिए। जबकि केमिकल में क्या होना चाहिए? हाई टेम्परेचर इज नीडेड। व्हाई? इन ऑर्डर टू गेट फॉर्म बॉन्ड। कॉम्प्लेक्स को एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तभी जाकर के बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और एक्टिवेशन एनर्जी कहाँ से मिलेगी? जस्ट बाय गिविंग द टेम्परेचर। नंबर 8 पॉइंट, नो अप्रिशिएबल एक्टिवेशन एनर्जी इज नीडेड। क्लियर हुआ? टेम्परेचर के रोल में एक्टिवेशन एनर्जी भी आ जाएगा। तो फिजिकल में कोई एक्टिवेशन एनर्जी नहीं चाहिए, जबकि केमिकल में हाई एक्टिवेशन एनर्जी इज नीडेड। एंड नंबर 9 पॉइंट, इट फॉर्म्स मल्टी मॉलिकुलर लेयर। मतलब फिजिकल एड्सॉर्प्शन में एक के ऊपर में दूसरी, दूसरे के ऊपर में तीसरी, तीसरे के ऊपर में चौथी, इस तरह से बहुत सारी लेयर्स बन जाती है, क्योंकि वहाँ जस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज देयर। बट इन केमिकल द बॉन्ड शुड बी फॉर्म्ड इन बिटवीन एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट। तो जो डायरेक्टली कांटेक्ट में होगा बॉन्ड उसी के बीच में बनेगा। मतलब सेकंड लेयर एड्सॉर्बेंट के ऊपर में बॉन्ड नहीं बना सकती। क्लियर हुआ? क्योंकि फर्स्ट लेयर इज इनडायरेक्टली कांटेक्ट विद द एड्सॉर्बेंट। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एड्सॉर्बेंट फिजिकल एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन। Factors affecting adsorption of gases on solid. We will discuss this point in next video. So, thank you.